हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय विद्युत और आवास मंत्री मनोहर लाल ने नई दिल्ली में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के तत्वाधान में नियामकों के मंच के साथ बातचीत की है और चर्चा राज्य बिजली नियामकों की प्रभावशीलता को बढ़ाने पर केंद्रित थी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने चर्चा की। विद्युत नियामक आयोग से ये चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने चर्चा की। बता दें कि ये चर्चा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बातचीत की। विद्युत नियामक आयोग से ये चर्चा हुई है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की। आपको बता दें कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से ये मुलाकात हुई है। साथ ही बता दें कि उन्होंने विवेकानंद तिवारी द्वारा लिखित पुस्तक सनातन समागम महाकुंभ की भेंट की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात हुई और सनातन समागम में जो है महाकुंभ पुस्तक जो है भेंट की है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात हुई है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की और सनातन समागम महाकुंभ पुस्तक भेंट की। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की समीक्षा बैठक की। उधर लखनऊ में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों के साथ साप्ताहिक समीक्षा बैठक की, जिसमें तय किया गया कि जीरो पॉवर्टी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत निर्धनता परिवारों के चयन की कार्रवाई 25 अक्टूबर से शुरू होगी। आपको बता दें कि जनप्रतिनिधियों को प्रोटोकॉल के अनुसार पूरा सम्मान दिया जाएगा। साथ ही पराली जलाने की घटनाओं की रोकथाम और पराली प्रबंधन के लिए जागरूकता अभियान चलाने पर चर्चा की गई। साथ ही आपको बता दें कि पीसीएस 2024 परीक्षा के नकल विहीन और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए पूरा व्यवस्था करने के आदेश दिए। उधर गौतम बुद्ध नगर की थाना सेक्टर 39 नोएडा 21 gun salute in her honor. The Vice President thereafter introduced Honorable President to several members of the Malawi Cabinet of Ministers and other senior dignitaries. Friends, coming to the background of this visit, India was one of the first countries to establish diplomatic relations with Malawi soon after the country's independence in 1964. India and Malawi share a cordial and friendly relationship reinforced by strong people-to-people ties which span over 140 years. Malawi remains one of our special partners in Africa, and India has strong development partnership with Malawi. It is in this context that the visit of the Honorable President assumes great significance. Coincidentally, this year also marks the 60th anniversary of the establishment of diplomatic relations between our two countries. I must add here that our people-to-people ties predate our official relations and go back over a century. Now coming to the engagements of the Honorable President
began in the morning of 17th October with the India-Malawi Business Roundtable, where she delivered the keynote address. Minister of Trade and Industry of Malawi, His Excellency Mr. Sostin Alfred Gwenge, also attended this business roundtable, which was organized by the Confederation of Indian Industries. There were several other ministers from the Malawian government present at this forum. Over 60 companies from both India and Malawi participated at this event. In her keynote address, the Honorable President of India observed that there was immense scope for enhancing cooperation between India and Malawi in several fields, including agriculture, mining, energy, and tourism. She expressed the belief that this roundtable would prove to be an important milestone in developing trade and economic cooperation between the two countries. The forum is continuing even today. Later in the evening of 17 October, a community interaction was held where the Honorable President of India addressed the community members of Indian origin and Indian nationals who are living in Malawi. The Indian diaspora in Malawi is estimated to be nearly 15,000. Our friendly bilateral relations are reinforced by the strong people-to-people ties. In her address, the Honorable President appreciated the contribution of the Indian diaspora to the growth and development of Malawi and described them as an important bridge between the two countries. She urged them to take part in the development journey of India. The engagements of the Honorable President of India began today morning by laying of a wreath at the National War Memorial in Lilongwe, which also commemorates the fallen Indian soldiers during the two world wars. Thereafter, she visited and paid tributes at the mausoleum of former President of Malawi, Dr. Kamuzu Banda. Honorable President thereafter held official talks with President of Malawi, His Excellency Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, at the State House. There was a tete-a-tete between the two leaders, followed by delegation-level talks. The meetings were extremely warm and friendly. During the meeting, both leaders discussed a wide range of issues on the bilateral cooperation between India and Malawi. Both sides reaffirmed their mutual trust and strong commitment towards enhancing the bilateral partnership for progress and prosperity of the people of both the countries. Both leaders agreed to enhance cooperation in the areas of capacity building, economic engagement, development partnership, and people-to-people exchanges. Following the bilateral talks, both the leaders witnessed the signing and exchanging of 4 memorandums of understanding in the fields of art and culture, cooperation on youth matters, sports cooperation, and pharmacopoeial cooperation. I would just like to give you a little bit of idea about each of the MOUs that were signed. The MOU on sports cooperation will provide for a framework to strengthen and encourage cooperation between India and Malawi on sports matters through events and activities organized by both countries on the basis of reciprocity and mutual benefit. The MOU on cooperation on youth matters between the two countries will focus on strengthening cooperation between India and Malawi in areas such as youth exchange programs, youth conferences, emerging youth issues, among others. The one on cooperation in the field of arts and culture will strengthen and deepen friendly cultural relations between both countries in the field of music, dance, theatre, art, archaeology, archives, library, and museum, to name a few.
The one on pharmacopoeial cooperation will ensure better scope for development of generic medicines and availability of affordable medicines in Malawi. It will also enhance the ability of regulatory public health authorities of both the countries to meet the needs of their respective populations and provide opportunities for technical cooperation in areas which are of mutual benefit. Following the signing of these 4 MOUs, the two leaders also witnessed the symbolic handing over of 1,000 metric tons of rice and the Bhabatron cancer treating machine to Malawi. Both these are gifts as a goodwill gesture from India to Malawi. As a humanitarian initiative, the Honorable President of India also announced the setting up of a permanent artificial limb replacement center for the people of Malawi. The Honorable President of India invited President Dr. Chakwera to visit India, which was graciously accepted. The mutually convenient dates for the visit would be finalized through the normal diplomatic channels. Friends, the visit of the Honorable President of India is continuing, and later in the evening today, President Chakwera will be hosting a state banquet in honor of the Honorable President of India at the State House. Tomorrow, Honorable President of India will be visiting the Sri Radhakrishna Temple in Lilongwe, which was established more than 50 years ago. To boost the tourism potential of Malawi, she will also be visiting the Lake Malawi before her departure for India from Malawi. Before concluding, friends, I would like to mention that this first ever presidential visit to Malawi will add a new chapter in the history of bilateral relations of India and Malawi. It reinforces the long-standing friendship between India and Malawi and sets the stage for elevating our multifaceted partnership with Malawi to greater heights. Zikomo Kwamberi. When we are looking at, the trade and commercial relations between India, if I start from there, then as I just mentioned that our trade relations is just not of today, but these are historic and they really go back to the 19th century, which coincided with the arrival of several Indian tradesmen, mainly from Gujarat and to the African subcontinent. Now, Malawi, being an LDC, is also the beneficiary under Government of India's duty-free tariff preference schemes, which were introduced in April 2008. We have removed the quota for import of pigeon peas from Malawi, and the bilateral trade between India and Malawi has also been growing. And as per the 21-22 data that I have, the bilateral trade stood at around $256 million US, though we had expected that the COVID pandemic would push it down, but we are happy that the trade continued. India also happens to be one of the largest investors in Malawi, with over $500 million worth of investments. If I were to touch upon the current relationship that is there between India, as I mentioned in my briefing, that both our countries have very cordial and very friendly relationship. This is based on mutual respect, cooperation, and very strong people-to-people contacts. We were one of the first countries to establish diplomatic relationship with Malawi soon after its independence. And our contacts, as I mentioned, is not of today, but goes back almost 140 years. Our common faith in democratic values and pluralism makes India and Malawi mutual natural partners. And this partnership has been reinforced by regular visits
and high-level contacts. India remains one of the major development partners of Malawi. Besides strong bilateral relationship, our countries also work closely in several multilateral fora on various issues of common interest. Our partnership for progress and prosperity is poised to further expand and deepen across diverse areas following this first historic visit of the Honorable President of India to Malawi. Regarding the Cancer Treatment Center, we are expecting and that the process of setting it up, completion would take place very, very soon, and the treatment of patients will start at the earliest. It would be at this moment difficult for me to commit any timelines. So I would just request you for this moment to take note that it is going to happen very soon. So as my High Commissioner points out, that hopefully by next month this should start functioning. And we are just waiting for the source material for the commencement of the Babatron equipment, following which the treatment of patients will start. Regarding the question on the Artificial Limb Center that you mentioned, a camp was recently held in Malawi, which was conducted by the Jaipur Foot. This was deeply appreciated here. Given the response to this temporary camp that we witnessed, it has now been decided, like the Honorable President today made an announcement, that we will establish a permanent camp as a fitment center for the Jaipur Foot. We already have most of the machinery required for this fitment. We are getting more artificial limbs and would be identifying the space at a local medical center to start the fitment camp. All I can say is that the process is going on, and very soon we will be able to announce its commencement. So that day is not very far off. Madam, your question regarding the whether the issue of restructuring or repayment was discussed. We would like to just inform you that there was a request from the Malawi government for debt restructuring, and the Government of India has agreed to the request for the deferment of the debt payment. We are also committed to provide any debt relief to the Government of Malawi if necessary. Our technical teams, that is both from the Government of Malawi side as well as the Government of India side, we are working, and we are very, very confident that we will be able to arrive at mutually convenient solutions on this matter. The last question was whether any further LOC line of credit is being talked about. At this moment, we are not discussing any line of credit with a fresh line of credit. Lines of credit are extended only once when there is a request from the recipient government. We have some of the lines of credit which are still under execution, so we are at this moment focusing on completing the work. बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियाँ। सौंदर्य साबुन
साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. अधिकांश लोगों की धारणा है कि आयुर्वेदिक इलाज स्लो और लंबा होता है और गंभीर रोगों को हैंडल नहीं कर सकता, लेकिन जीवा आयुर्वेद ने लोगों की सोच को बदल कर रख दिया है। जीवा आयुर्वेद ने 20 लाख से अधिक पेशेंट्स की पर्सनलाइज्ड चिकित्सा की है और 400 से अधिक स्टाफ आपकी सेवा में अवेलेबल है। यदि आपको लगता है कि आपकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो एक बार जीवा आयुर्वेद में जरूर कॉल करिए। तो अभी तुरंत 70 42 40 40 40 पर कॉल करिए। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है। कहते हैं मोर के पंखों में देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। ज्योतिष के मुताबिक घर में विधिवत तरीके से मोर पंख स्थापित करने से सारे दुख दर्द और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे मोर पंख हमें ये भी सीख देते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के रंगों से भरा पड़ा है, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के रंग। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि भगवान राम पर एक मोर ने कर्ज चढ़ा दिया था, जिसे उन्होंने अगले जन्म में उतारा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी। राम जी ने चारों ओर इधर उधर देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने जंगल देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे जंगल देवता, हमें पानी की ओर जाने का रास्ता बताइए। थोड़ी देर में एक मोर आया और उसने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, मैं जलाशय तक आपका मार्गदर्शक बन जाता हूं, लेकिन रास्ते में कोई भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, वो क्यों? मोर ने कहा, प्रभु मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए, ऐसे में आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं रास्ते के बीच बीच में अपना एक मोर पंख निशानी के लिए छोड़ता जाऊंगा। उसका पीछा करते करते आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक खास मौसम में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही इस मोर का भी हुआ। आखिर में जब मोर अंतिम सांस ले रहा था तो वो कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इस पर श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, मैं उस कर्ज को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। आप भी मोर में प्रभु राम और श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साक्षात मोर पंख को अपने मंदिर में सजाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते जयपुर जिस स्थान पर गया, वहां कम से कम 200 मोर थे, जिनके साथ रहने का आनंद और सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सारी जानकारी एकत्र करके आपसे साझा की। आप भी जब कभी मोर को देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आप भी साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच में ये मोर पंख इतना भी सुंदर ना होता, कृष्ण, अगर ये तेरे सिर पर ना सजा होता। नमस्कार। आप हकीम साहब से कैसे जुड़ी और कब से जुड़ी हुई हैं?
3 साल हो चुके हैं हकीम साहब से जुड़े हुए, और मैं YouTube के जरिए जुड़ी हूँ। घरेलू इलाज भी बताते हैं, वो भी मैं यूज करती हूँ। अजवाइन, सौंफ, धनिया, ये सब मिक्स करके बनाते हैं ना, जीरा चीजों वाला जो नुस्खा बताते हो पेट के लिए, हाजमे के लिए, वो भी मैंने यूज किया है। तकलीफ क्या, जोड़ों में दर्द? हाँ, जोड़े के दर्द के लिए। और क्या तकलीफ रही आपको, और क्या दवाई इस्तेमाल की? बस गोंदसिया किया है और टी केयर कैप्सूल। अच्छा, काफी चढ़ना होता है। और अब तकलीफ होती है सीढ़ी चढ़ने में? है। नहीं होती है, आराम से चढ़ लेती है। हाँ जी, मैं तो ये कहूंगी हकीम साहब जितना अच्छे तरीके से इलाज बताते हैं और उसको फॉलो किया जाए तो बहुत फायदा हो सकता है। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. तुम हुस्न परी तुम जाने जहाँ हो, इतनी हंसी ढूंढे तितलियाँ। पंजाब में समस्या पर सीएम भगवंत मान का बयान, कहा पराली जलाने के लिए सिर्फ पंजाब को नहीं ठहराया जा सकता जिम्मेदार, ये मुद्दा पूरे उत्तर भारत का। लुधियाना दौरे पर डीजीपी गौरव यादव, स्पेशल नाकों पर की गई चेकिंग, सड़कों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद। गुरदासपुर में फूड सेफ्टी विभाग ने की जांच, कई दुकानों से खाद्य सामग्री के लिए सैंपल, फूड सेफ्टी लाइसेंस लेने के लिए लोगों को किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। श्री फतेहगढ़ साहब को टूरिज्म हब बनाने के लिए पंजाब सरकार की तरफ से एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसका ऐलान बहुत ही जल्दी कर दिया जाएगा। इस खास बातचीत का स्पष्टीकरण देते हुए कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंध अपने वचन भवन में मीडिया के साथ बातचीत करते हुए कहा कि हाल ही में हुआ पंचायती चुनाव दौरान जो है पंजाब के गांव के लोगों ने 80% से ज्यादा फोन उम्मीदवारों के हक में अपना फैसला दिया है, जो कि आम आदमी पार्टी की सोच वाले श्री सोंध ने कहा कि पंजाब सरकार की तरफ से सर्वसम्मति के साथ बनी पंचायत को 5 लाख रुपए जारी किए जाएंगे। राज्य के गांव के विकास में किसी प्रकार की कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। तो फतेहगढ़ साहिब में जो है कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सोंध का बयान सामने आया है, जिसमें क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात मिलेगी। टूरिज्म हब बनाने की कवायद जो है तेज हो गई है। कैबिनेट मंत्री तरुणप्रीत सोंध का बयान आया है कि किसी भी गांव को जो है बिना विकास के नहीं छोड़ा जाएगा। क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात मिलेगी और साथ ही साथ टूरिज्म हब बनाने की कवायद भी यहां तेज हो गई है। देखो, ये लोकतंत्र की सब तो वड्डी जित हुई है। मुख्यमंत्री सरदार भगवंत मान जी की अगुवाई चल रही जो पंजाब च आम आदमी पार्टी की सरकार है, इको एक सरकार अज तक जी सिर्फ तो सिर्फ मुद्दों के उत्ते गल करती है। साडी जी सारी की सारी सियासत है वह मुद्दों के उत्ते है।
ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 2.5 ਸਾਲ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਫਤਵਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਇਹ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਸਿੰਬਲ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ उधर पंजाब के डीजीपी गौरव यादव महानगर लुधियाना पहुंचे, जहां उन्होंने स्पेशल नाकों की चेकिंग की और साथ ही नाकाबंदी पर चेकिंग करवा रहे वाहन चालकों से भी बातचीत की। साथ ही आपको बता दें कि डीजीपी यादव ने के साथ जो है लुधियाना के पुलिस कमिश्नर कुलदीप चहल, डीसीपी रूरल जसकिरणजीत सिंह तेजा भी मौजूद रहे। जैसे ही अचानक डीजीपी गौरव यादव के औचक निरीक्षण का जिला पुलिस प्रशासन को पता चला तो एकदम से सड़कों पर पुलिस बल तैनात हो गया और हर चौक पर पुलिस कर्मचारियों ने नाकाबंदियां कर दी। वहीं डीजीपी यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में भी स्पेशल चेकिंग जारी रहेगी। डीजीपी गौरव यादव का औचक निरीक्षण को लेकर जो है पुलिस कमिश्नर भी यहां पर मौजूद रहे और जैसे ही पुलिस महकमे को डीजीपी यादव के आने की औचक निरीक्षण की खबर मिली तो उसके बाद जो है सड़कों पर और नाकों पर पुलिस बल तैनात हो गया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अभी स्पेशल चेकिंग के माध्यम से नाकाबंदी की जा रही है, नाकों पर चेकिंग की जा रही है, ये लगातार जारी रहेगी। गुरप्रीत हत्याकांड में सांसद अमृतपाल से जो है कनेक्शन के डीजीपी के खुलासे के बाद गुरप्रीत के परिवार का बयान जो है सामने आया है, जिसमें गुरप्रीत के चचेरे भाई सुखप्रीत सिंह ने कहा कि पुलिस जल्द से जल्द सभी आरोपियों को गिरफ्तार करे और कोई निर्दोष न फंसे और कोई भी दोषी न बचे। उन्होंने कहा कि पुलिस को इस मामले में शामिल सभी लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस मामले में किसी भी दोषी पक्ष को बख्शा नहीं जाना चाहिए और किसी भी निर्दोष को फंसाया नहीं जाना चाहिए। तो हत्याकांड में अमृतपाल का कनेक्शन को लेकर जो है गुरप्रीत हत्याकांड में अमृतपाल का कनेक्शन और इस कनेक्शन को लेकर जो है गुरप्रीत के चचेरे भाई सुखप्रीत का बयान सामने आया है, जिसमें कि पुलिस से जल्द जो है गिरफ्तारी करने की मांग की है और साथ ही उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले में दोषी को बख्शा नहीं जाना चाहिए और निर्दोष को नहीं फंसाना जाना चाहिए। तो गुरप्रीत के चचेरे भाई सुखप्रीत का बयान सामने आया है, पुलिस से जल्द ही गिरफ्तारी की मांग की है और साथ ही उन्होंने कहा है कि इस हत्याकांड के दोषी को नहीं बख्शा जाना चाहिए और किसी भी निर्दोष को नहीं फंसाया जाना चाहिए। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਸੀਗੇ ਉਹ ਧਮਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਆ ਉਧਰ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਕਿ ਜਿੱਧਰੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ? ਧਮਕੀਆਂ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸਰਕੂਲੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ। ਪਿੱਪਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਬੰਦਾ उधर फरीदकोट के गुरु तेग बहादुर नगर में जातीय रंजिश के चलते देर रात एक घर पर फायरिंग की गई और बताया जा रहा है कि इस मकान में पहले से ही किराए पर रहने वाला एक युवक जातीय आक्रोश के चलते देर रात आया और मकान मालिक पर गोली चला दी। मकान मालिक ने भागकर दूसरे मकान में घुसकर अपनी
किसी तरह से जान बचाई, तभी आरोपी उसके पीछे आया और उस घर पर गोली चला दी। इस घटना में पीड़िता की जान बाल बाल बच गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पीड़ित के भाई ने उसकी जानकारी दी। तो घर में घुसकर गोली चलाने का ये मामला फरीदकोट से सामने आया है, जहां पर जातीय आक्रोश के कारण ये पूरी वारदात सामने देखने को मिली है। पीड़ित ने किसी तरह से पड़ोस के मकान में छिपकर जो है अपनी जान बचाई। साथ ही पीड़ित के भाई ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। सीसीटीवी फुटेज आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है एक सिरफरा व्यक्ति जो है जातीय आक्रोश में आकर मकान मालिक के को जो है दौड़ाता हुआ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, लेकिन मकान मालिक जो है किसी तरह पड़ोस के मकान में छिपकर जो है अपनी जान बचाता हुआ भी दिखाई दे रहा है। साथ मैं तो इन्होंने मम्मी भी सनी के मम्मी भी बैठे ऐसे अंदर, मेरा भी पूरा हो गया सी तो अफसोस करन आए थे, तो ऐसे अंदर ही बैठे थे। जो फायरिंग चली आ ना तो असी भी सानू लगे पटाखे चले आ ते पिछे पिछे ना जो चले मुंडा ना अंदर भज्जिया तो जिदे पिछे आए थे, जो अंदर भज्जिया तो ओदे नाल ही मतलब उन्हां दी मम्मी निकल के आए बाहर, तो असी भी नाल ही निकल के आए तो साडे घर वाल नूं फायर कीते सी। किन्ने गोलियां तो चलाईयां जी पता लगा? सानू तो लगता सी पटाखे चले, 2-3 तो शायद चले ही सीगे जी। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਰਾਏ ਤੇ 3-4 ਸਾਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਚੋਰੀ ਚਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋਰਤਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਹ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਬੰਚਾਕੀ ਰੋਡ ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬਹਿ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਪਏ, ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਬਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਬਹਿਣ ਖਾਤਰ ਬਈ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਆਹ ਵਾਕਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ ਬਿਮਾਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀ। गुरदासपुर बटाला के अलग अलग इलाकों में फूड सेफ्टी वैन पर आए फूड सेफ्टी विभाग के कर्मचारियों ने खाद्य पदार्थ बनाने वाली कंपनियों की दुकानों की जांच की और खाद्य पदार्थों के सैंपल भी भरे। साथ ही आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग के कर्मचारी जसप्रीत सिंह ने कहा कि ये एक नियमित जांच है और खाद्य सुरक्षा विभाग नियमित रूप से ऐसी जांच करता रहता है। बता दें कि उन्होंने साथ ही कहा कि चेकिंग के दौरान जो है विभिन्न खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए भेज दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले लिए गए कुछ नमूने फेल हो गए हैं और कुछ पास हो गए हैं और फेल हुए नमूनों में ज़्यादातर बर्गर, पिज़्ज़ा और सूप में इस्तेमाल होने वाले सॉस के नमूने शामिल हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि खाद्य पदार्थ बेचने वालों के फूड सेफ्टी लाइसेंस की भी जांच की जा रही है और जिन दुकानदारों ने ये लाइसेंस नहीं लिया है उन्हें फूड सेफ्टी लाइसेंस लेने के लिए जागरूक किया जा रहा है। फूड सेफ्टी विभाग ने जांच की और कई दुकानों से खाद्य पदार्थों के सैंपल भी लिए हैं। साथ ही फूड सेफ्टी लाइसेंस पर भी यहां खाद्य पदार्थ विभाग की नज़र बनी हुई है और जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनको जागरूक भी किया जा रहा है। डिपार्टमेंट तो अज ना सैंपलों की चैकिंग हो रही बटाले एरिए से डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर वालों सारे ही दुकानदारों के सैंपल ले गए हैं। उन्होंने मौके पर रिपोर्टां दित्तियां गईयां हन। जो भी ये पाया गया है कि वह जी ऑन दी स्पॉट रिपोर्ट एज ए लैब टेक्नीशियन वालों रिपोर्टां दित्तियां गईयां ते तकरीबन जी मोस्टली सैंपल पास भी आ गए ने, थोड़े जिन्हों के 2-4 फेल भी आए हैं।
उधर जलालाबाद में चोरों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। चोरों ने गुरुद्वारा को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि 3 गांवों में एक ही रात 3 गुरुद्वारा साहिब से गोलक चोरी होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि जलालाबाद के गांव घुबाया, चकमोचनवाला और ज्वालेवाला गांव के श्री गुरुद्वारा साहिब में चोर दाखिल हुए, जो गुरुद्वारा साहिब में रखी गुल्लक उठा कर ले गए। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी बलकार सिंह का कहना है कि उनके पास इस बाबत सूचना आई है, मामले में जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि गांव घुबाया की गुल्लक चोरी हुई है। तो चोरों के किस तरीके से हौसले बुलंद हैं कि वो तीर्थ स्थलों को भी अपना निशाना बनाने से नहीं चूक रहे हैं। मामले की जांच में पुलिस लगातार जुटी हुई है। उन्होंने बताया कि इस बाबत जो है शिकायत उनके पास मिली है। घुबाया गांव में जो है गुरुद्वारा में गुल्लक चोरी हुई है। तस्वीरें सीसीटीवी फुटेज की आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक निडर व्यक्ति गुरुद्वारा में दाखिल होता है और वहां से गुल्लक उठाकर सफाई के साथ वहां से फरार हो जाता है। उधर पराली जलाने की समस्या पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पराली जलाने की समस्या के लिए केवल पंजाब को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। सीएम मान ने कहा कि पराली का मुद्दा पूरे उत्तर भारत का है। इसके समाधान के लिए सभी राज्यों, केंद्र सरकार के साथ एक बैठक बुलाएं और जिसमें विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों को भी आमंत्रित किया जाए। हमारे किसान धान लगाना ही नहीं चाहते क्योंकि हमारा भूमिगत जल खत्म हो गया है, वरना हमने पराली प्रबंधन के लिए 1.5 लाख मशीनें भी उपलब्ध कराई है। का मुद्दा जो है ये एक स्टेट का नहीं है मुद्दा, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया का है। इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूं, प्रधानमंत्री जी अगर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, ऐड आती है ना, पापा युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने, तो यहाँ का धुआं नहीं बंद करवा सकते। बैठाओ, सारी स्टेटों को बिठाओ, बुलाओ और कंपनसेशन दो। उसके नतीजे साइंटिस्टों को बुलाओ। पंजाब का किसान नहीं चाहता, पहली बात तो धान भी चाहता है कि मैं ना उगाऊं, पानी नहीं है हमारे पास, वाटर लेवल जो है हमारा नीचे चला गया। देखो ये पराली का मुद्दा जो है ये एक स्टेट का नहीं है मुद्दा, ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया का है। इसके लिए मैं पहले भी कह चुका हूं, प्रधानमंत्री जी अगर यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं, ऐड आती है ना, पापा युद्ध रुकवा दिया था मोदी जी ने, तो यहाँ का धुआं नहीं बंद करवा सकते। बैठाओ, सारी स्टेटों को बिठाओ, बुलाओ और कंपनसेशन दो। उसके नतीजे साइंटिस्टों को बुलाओ। पंजाब का किसान नहीं चाहता, पहली बात तो धान भी चाहता है कि मैं ना उगाऊं, पानी नहीं है हमारे पास, वाटर लेवल जो है हमारा नीचे चला गया। देखो ये दिवाली से पहले पंजाब सरकार ने कपूरथला को बड़ा तोहफा दिया है। पंजाब सरकार में मंत्री रणजोत सिंह ने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन किया। इस मौके पर राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सींचेवाल और निर्वाचन क्षेत्र प्रभारी सज्जन सिंह चीमा भी मौजूद रहे। बता दें कि करीब 9 करोड़ रुपए की लागत से बना आधुनिक तकनीक वाला सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लोगों के लिए वरदान साबित होगा। इसी के साथ मंत्री रणजोत सिंह ने निरीक्षण में अप्रोच रोड का निर्माण नहीं होने पर अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। मंत्री रणजोत सिंह ने इसका उद्घाटन किया और साथ ही अप्रोच रोड ना होने की वजह से तो यहां पर उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए।
उधर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजावड़िंग ने कहा कि आने वाले 2 से 4 दिन के बीच पंजाब के उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसमें कि उन्होंने बताया कि निवेदन पत्र विधानसभा क्षेत्र से आए हैं और साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी के चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि वह अध्यक्ष की पत्नी है, वह सीधे रूप में निवेदन पत्र नहीं दे सकती और इसका फैसला कि वह चुनाव लड़ेंगे या नहीं हाईकमान करेगा। और उन्होंने कहा कि जिस तरह से विरसा सिंह बल्टोहा वहां से ने जो है ज्ञानी हरप्रीत सिंह को लेकर शब्दावली का इस्तेमाल किया है वह सही नहीं है, उनको नंगे पांव जाकर ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी से माफी मांगनी चाहिए। आज बहुत चंगा दिन है, 2 लोगों ने आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। पहला तो साबका एमएलए मोही साहब के सुपुत्र मोही साहब जिहड़े कि साडे एससी कमीशन के मैंबर सन, उन्होंने आज पार्टी ज्वाइन की है, नौजवान साथी है, मैं उन्होंने भी जी आया कहना। और नाल ही नाल आज जलालाबाद के बहुत वड्डे आगू, मैं समझदा कि एक मुकम्मल थंब जिहड़े सुखबीर सिंह बादल की इलैक्शन जिताउण दे विच आपदा वड्डा योगदान वो हमेशा पाउंदे सी, मोहरे होके वो लड़ते सन, 2 बार जिला परिषद के मैंबर। उधर पंजाब में सड़क दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें कि तेज रफ्तार वाहनों के कारण हर दिन लोगों की जानें जा रही हैं। ताजा मामला नाभा का है, जहां मोटरसाइकिल सवार जसकरण सिंह जो 12वीं कक्षा का छात्र था और ट्यूशन के लिए गांव पलाया से नाभा आ रहा था, उसकी नाभा के ग्रिड चौक पर सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल के बस के नीचे आ जाने के कारण यह दर्दनाक हादसा हुआ है। पूरी घटना को लेकर मौके पर पुलिस के जांच अधिकारी ने कहा कि हम जांच कर रहे हैं कि यह हादसा कैसे हुआ। तो वहीं मृतक के रिश्तेदार जसकरण सिंह ने कहा कि तेज रफ्तार बस के कहर ने हमारे लड़के को मौत के मुंह में पहुंचा दिया। सामने गड्डी आ रही थी, ਉਹਦੇ टकरा के मोटरसाइकिल अगे आ गया। ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਲੱਗੀਆਂ? ਸੱਟਾਂ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ, ਮਗਰ ਡਰਾਈਵਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਜੀ। ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜੀ ਗ੍ਰਿਡ ਚੌਂਕ ਦੇ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਜੀ, ਜਿੱਧਰ ਚੌਧਰੀ ਮਾਜਰਾ ਮਿਲਟਰੀ ਰੋਡ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਮਿਲਟਰੀ ਰੋਡ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਿਡ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਬੱਸ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਬੱਸ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ ਇਹ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਜੇ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਬੱਸ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ? ਇਹ ਡਰਾਈਵਰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਆ? ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਲੀਆ ਕਲਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਭੇ ਜੀ। ਬੱਸ ਨਾਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ। 17 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ। ਤੇ ਨਾਭੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ? ਨਾਭੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ। अक्सर युवा अपने घर के हालात सुधारने के लिए विदेश जाते हैं और विदेश जाने का चलन पंजाब में सबसे ज्यादा देखा जाता है। इस बीच घर के हालात सुधारने के लिए बेटा विदेश में गया था, यहां वह एक हादसे का शिकार हो जाता है और ऐसा ही कुछ देखने को मिला जिला पठानकोट के भोआ में, जहां गांव धूपसड़ी का एक युवक पैसे कमाने के लिए अमेरिका गया। यहां उसकी 2 साल बाद उसकी वहीं रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद परिवार शोक की लहर में और परिवार अपने बेटे से मृतक को पंजाब लाने की मांग कर रहा है। बेटा करीब 2 साल पहले काम के लिए अमेरिका गया था और वह घर में एकमात्र कमाने वाला था। मृतक के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी और एक बेटा है। घर लाया गया ताकि परिवार उनकी अंतिम प्रार्थना कर सके।
मैं जे मेरे बेटे की कोई गौरमेंट मदद कर सकती है तो मेरा बेटा मैनू इत्थे घर पहुंचना चाहिए। मैं उसका मुंह देखना बच्चे का, मैं अपने बच्चे का मुंह देखना, और रिश्तेदारों ने मुंह देखना, सारे ने मुंह देखना ओदा। जे जिस तरह गवर्नमेंट मेरी मदद करेगी, मैं गरीब, मैं बेचारा, मैं बुढ़ा आदमी है, मैं कुछ नहीं कर चुका। मैं मेरे उससे बच्चे थे, मेरी डोरियां सी पूरियां उससे वो ही बेचारा करता सिलसिला सीगा साडे घर दा, वो पूरा करता। उस दाते ने कुछ नहीं सोचा मेरे बारे। मेरा नाम जतिंदर कौर है, मेरे हस्बैंड का नाम मनदीप सिंह। 2 साल पहला गए। मेरी यही मांग है कि उन्होंने लिया जाए। बड़ी मंदभागी खबर है, जिस समय देखे अमनदीप जो पिंड धुपछड़ी तो अज तो 2 साल पहला रोटी रोजी कमाने के चक्कर च अमेरिका गया सीगा, जिसकी अज सवेरे 5 बजे उसके माँ प्यो को उसकी डैथ की कॉल आई है, जिहड़ा दुखों का पहाड़ के परिवार से डिग्या। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।